Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to interact your physics paper in which the topics are capacitors, COM and clusions. Now question number first. A condenser of capacity 10 microfarad is charged to a potential of 500 volts. Its terminals are connected to those of an uncharged condenser of capacity 40 microfarad. The loss of energy in connecting them together is. So the solution of this question is like this. You are having a charged capacitor whose capacitance is 10 microfarad. Its potential is provided, that is 500 volt. It's a charged capacitor. It's connected to an uncharged capacitor of capacitance 40 microfarad. The question is that when we are going to connect this uncharged capacitor to this charged capacitor, definitely there will be a distribution of charges and therefore loss of energy. The loss of energy can be directly calculated with the formula. It's 1/2 C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 का whole square. So the loss of energy here will be 1/2 C1 C2, that it's 10 into 40, it's 10 into 10 raised power minus 6 into 40, it is 40 into 10 raised power minus 6 divided by 10 plus 40 is 50 microfarad, it's 10 raised power minus 6 multiplied by 500 square, because जो दूसरा capacitor है that is uncharged. Now see here, it is 2 5s are 10, 5 10s are 50, 10 4s are it is 40. तो उसके बाद आप देख लीजिए that del U can be calculated like this. तो ऊपर जो बचा आप that is 4 into 10 raised power minus 6, क्योंकि एक 10 raised power minus 6 यहाँ कट जाएगा, then you are left with here it is 25 into 10 raised power 4. Then del U is equal, it is 100, 25 into 4 is 100, it's 10 raised power 2 into 10 raised power minus 6 into 10 raised power 4. तो 10 raised power 2, 10 raised power 4 is 10 raised power 6, 10 raised power 6, 10 raised power minus 6 चला जाएगा, तो you are left with 1 joule should be the answer of this question. So option number first is the right answer for this question. Question number next is, the radius of the circular plates of a parallel plate condenser is r. Here is the there as the dielectric. The distance between the plates of the capacitor is equal to that of an isolated sphere of a radius r is. तो very simple, आपसे कहा जा रहा है कि you are having a parallel plate capacitor whose plates are that circular in shape and they are separated by some distance filled with air as a dielectric, and it is given that the capacitance of this parallel plate capacitor is equal to that of a sphere of radius r dash. तो इसकी capacitance इसके बराबर है, तो हमें पता है कि parallel plate capacitor की जो कैपेसिटेंस होती है दैट्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और हमें दिया गया है ये इस स्फीयर की कैपेसिटेंस के बराबर है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश, क्योंकि हमें पता है एक स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो इसमें वैल्यूज ड्रॉप करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट होता है बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश. तो यहाँ पे पाई और पाई निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट निकल गया, डी चाहिए, क्रॉस करेंगे इसको तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई इट इज 4 आर डैश शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें क्या था कि दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सर्कुलर प्लेट्स का बना हुआ है उसका कैपेसिटेंस एक स्फीयर के बराबर है. वी आर इक्वेटिंग द टू एंड गेटिंग द फाइनल आंसर, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 64 spherical drops each of radius 2 centimeter and carrying 5 coulomb charge combined to form a bigger drop. Its capacity is, so this is called as combination of drops. और आपने पढ़ा होगा that on combining those 64 small drops the capacitance of the bigger is given by n raised power 1/3 into the capacitance of the smaller one. The capacitance of the bigger is n जो है वो आपका 64 है, raised power है वहाँ पे 1/3 and the capacity of each small drop is 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर. तो कैपेसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 4 रेज्ड पावर 1/3, ये हो गया 1/3 इनटू दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आपको पता होना चाहिए दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 into 10 raised power 9. तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/9 into 10 raised power 9 और रेडियस जो है दैट्स 2 सेंटीमीटर, तो 2 raised power 2 into 10 raised power minus 2. यहाँ पे आप देख लीजिए 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 4s are 8. द कैपेसिटेंस शुड बी 8 डिवाइडेड बाय नीचे जो है आपका 9 है. अगर हम 10 raised power 9 को ऊपर लेंगे तो ये 10 raised power minus 9 की वजह से 10 raised power minus 11 farad should be the right answer for this question. तो combination of drops एक important question माना जाता है, and this is when they combine together, this is the capacitance of the bigger drop on combining many smaller drops. Then question number next is, देखिए ये इन्फिनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. और हमें पता है कि ये एक कैपेसिटर है, फिर ये इस आर्म के साथ पैरेलल एंड पैरेलल सो ऑन, बट हम एक एक आर्म का देख लेंगे. इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 मिलीफेरेड दिया है, तो मैं मानता हूँ फिलहाल वो सी है. ये दो जो है सीरीज में है सेम कैपेसिटेंस, तो ये सीरीज में जो है वो C/2 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर्स का आपको पता है दैट 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. तो उसी हिसाब से ये C/2 हुआ. ये 4 कैपेसिटर सीरीज में है तो C/4 हुआ.
ये 8 कैपेसिटर सीरीज में है तो C/8 एंड सो ऑन। तो फिर ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं, यहाँ पे क्लियरली दे आर इन पैरेलल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। देयरफॉर द कैपेसिटेंस शुड बी एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, दैट इज C plus C/2 plus C/4 plus C/8 plus सो ऑन। फिर यहाँ C इक्विवेलेंट जो है आपका C बाहर आएगा तो अंदर बचा 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus सो ऑन। तो हमें पता है कि ये जो है इट इज कॉल्ड एज GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और मैथमेटिक्स में इसका जो सम होता है GP का दैट इज A डिवाइडेड बाय 1 minus R। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल C जो है वो 1 मिलीफैरेड है, तो 1 मिलीफैरेड इनटू, तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 1, A इज फर्स्ट टर्म, देन 1 minus R इज द कॉमन रेशो, और इस पूरी सीरीज का जो कॉमन रेशो है दैट इज 1/2। देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 मिलीफैरेड, देन इट इज 1 minus 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 मिलीफैरेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 millifarad is the right answer for this question. Question number next is, consider the situation shown in the figure. The capacitor A has a charge Q on it, whereas B is uncharged. The charge appearing on the capacitor B a long time after the switch is closed. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप स्विच क्लोज कर देंगे, हमसे पूछा गया है कि स्विच जैसे क्लोज होगा तो ये A कैपेसिटर, ये B कैपेसिटर है, तो B पे कितना चार्ज आएगा। इनिशियली इट इज अनचार्ज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप इस सर्किट को यहाँ पे क्लोज भी कर दोगे स्टिल ये सर्किट यहाँ से ओपन है, और जब सर्किट ओपन होता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो होता है। नो चार्ज विल फ्लो, चार्ज जो है उसमें फ्लो नहीं हो सकता, चार्ज उसमें फ्लो हो नहीं सकता, तो इस पे कोई चार्ज आएगा नहीं, तो आंसर शुड बी 0 बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट, नेचर ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a capacitor of 2 microfarad is charged as shown the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its energy stored dissipated is। देख लीजिए पहले आपके साथ ये कॉम्बिनेशन है, आपके पास एक कैपेसिटर है और ये चार्जड कैपेसिटर है, तो 2 माइक्रोफैराड चार्ज है और इसका पोटेंशियल जो है वो V है, मींस इट इज चार्जड। फिर आपको बोला जा रहा है कि अब आपने जो है स्विच 2 पोजीशन पे लाया तो ये कनेक्ट हुआ, ये जो चार्जड कैपेसिटर है एक अनचार्जड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ, और वो अनचार्जड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 8 माइक्रोफैराड। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इज। तो हम निकालेंगे जो इस कॉम्बिनेशन का जो इनिशियल एनर्जी था, जो इस कॉम्बिनेशन का इनिशियल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी जो था दैट इज हाफ ऑफ CV²। C जो है दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶ एंड V² इज पोटेंशियल स्क्वायर। सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी। 2 चला जाएगा तो इनिशियल एनर्जी इस कैपेसिटर का, चार्जड कैपेसिटर का जो है दैट इज 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय V², इक्वेशन फर्स्ट। फिर जब आपने इसको एक अनचार्जड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने अर्लियर भी पढ़ा है अभी आपको, इट इज हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इनटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। सो द लॉस ऑफ एनर्जी हियर विल बी 1/2। C1 आपका जो है दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶, C2 जो आपका है दैट इज 8 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 8 + 2 होता है 10 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है V², क्योंकि दूसरा अनचार्जड है तो उसमें जो है चार्ज 0 है। तो उसके बाद आप इसमें देख लीजिए, अगर आप यहाँ 2 उड़ा देंगे, यहाँ 10⁻⁻⁶ 10⁻⁶ चला जाएगा तो डेल यू का वैल्यू आ जाएगा 8/10 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय V², इक्वेशन सेकंड। बट हमसे परसेंटेज लॉस पूछा गया तो मैं लिखूंगा डेल यू डिवाइडेड बाय द इनिशियल एनर्जी। डेल यू आपने कैलकुलेट किया, इट्स 8/10 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय V² डिवाइडेड बाय द इनिशियल एनर्जी जो है दैट इज 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय V²। V² जाएगा 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶, और परसेंटेज के लिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 कट के आंसर आ जाएगा आपका 80% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 80% शुड बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, फॉर द सर्किट इन द फिगर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट इज। तो हमें इस सर्किट में हमें कैपेसिटर के ईदर प्लेट पे जो है चार्ज कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए जब आप कैपेसिटर, एक RC सर्किट में जब कैपेसिटर जो कनेक्ट करते हो बैटरी सोर्स के साथ, आफ्टर मिली सेकेंड्स, आफ्टर मिली सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम ये जो है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये ब्रांच जिसमें कैपेसिटर लगा होता है वहां से करंट जो है वो रिड्यूस होती है टू 0। सो करंट इन दिस ब्रांच व्हेन रिड्यूस टू 0 तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा सर्किट से, तो इस ब्रांच से तो करंट 0 होगी। तो डेफिनेटली
इस ब्रांच में अब इस कैपेसिटर के प्लेट्स में कुछ चार्ज डेवलप होगा, हमें वही चार्ज कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लॉजिक पे चलेंगे कि जो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन टू प्लेट्स, चूंकि पैरेलल में इस रजिस्टर के साथ है, तो वो इस पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। अब पोटेंशियल के लिए पहली फुर्सत में आप इस ब्रांच में करंट निकालो, और चूंकि यहां तो करंट जाएगी नहीं, तो करंट यहां से जाएगी, और हमारे पास इक्वेशन बनेगी I इज इक्वल टू नेट EMF इज E डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R। दिस विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड, नेट करंट इन द सर्किट। तो ये नेट करंट है, और फिर जो इसमें पोटेंशियल है वो इस पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। अब जो पोटेंशियल कैपेसिटर में होगा, दैट विल बी पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई C इज इक्वल टू दैट पोटेंशियल हियर इन दिस ब्रांच, इट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। तो इट इज Q बाई C इज इक्वल, करंट हमने कैलकुलेट किया, इट इज E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस इज R1। तो Q हमारा जो है दैट्स ECR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इट इज CER1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो पहले हमने इंडिकेट किया है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, दैट्स इफ द कंडेंसर शोन द सर्किट इज चार्ज टू 5 वोल्ट एंड लेफ्ट इन द सर्किट। तो आपने इसको 5 वोल्ट तक चार्ज किया और फिर छोड़ दिया सर्किट में इन 12 सेकंड्स द चार्ज। तो सीधी सी बात है, जब आपने पहले चार्ज करके इसमें इस सर्किट में जोड़ दिया, तो चार्ज यहां ट्रांसफर होगा, चार्ज यहां फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो इसमें डिक्रीज चार्ज होगा। तो पहला जो हम इसमें काम करेंगे, हम इनिशियल चार्ज निकालेंगे। इनिशियल चार्ज हो गया CV, C हो गया इसमें 5 और V जो है दैट इज 2। तो इट विल बी 10 कूलम विल बी द चार्ज, इनिशियल चार्ज। बट आफ्टर दैट जब आपने सर्किट में इसको जोड़ दिया, तो चार्ज अब डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो Q इज इक्वल Q नॉट E रेज़्ड पावर माइनस T बाई टा, where ta is called as time constant of an RC circuit and is equal to RC। तो Q is equal to initial charge जो है 10 e raised power minus T हो गया 12 seconds, क्योंकि 12 सेकंड में डिवाइड बाय RC। R अगर आप देखेंगे दैट इज 6 एंड C अगर आप देखेंगे दैट इज 2। तो Q हो गया बराबर 10 e raised power, तो 12 और 12 जाएगा -1, तो Q होना चाहिए 10 बाई E कूलम शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 12 सेकंड के बाद जो सर्किट में चार्ज होगा दैट विल बी 10 बाई E कूलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question number next is a capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of the system. तो आपके पास इनिशियली एक कैपेसिटर है, हम मानते हैं उसकी कैपेसिटी C है, उसका पोटेंशियल V है। तो दिमाग कहता है कि उसका इनिशियल एनर्जी जो है वो न्यूमेरिकली होना चाहिए हाफ ऑफ CV स्क्वायर। हम इसको छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला गया है, हमने इसको एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है जो अनचार्जड है। आइडेंटिकल कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटेंस C। तो पहली फुर्सत में हम यहाँ कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल अगर आप सर्किट में देख लेंगे तो वो होता है C1V1 दैट इज C इंटू V प्लस C2V2। ये अनचार्जड है, इस पे चार्ज 0 है, ये पोटेंशियल सोर्स के साथ जुड़ा ही नहीं था, तो इसमें हो गया 0 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इट इज C प्लस C। तो कॉमन पोटेंशियल जो इस सर्किट में होगा दैट इज CV डिवाइडेड बाय 2C, CC कट जाएगा और इट विल बी V/2। तो हमें जो कॉमन पोटेंशियल मिला दैट इज V/2। अब हम फाइनल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का निकालेंगे। तो फाइनल एनर्जी इस सिस्टम का हो गया हाफ ऑफ C हो गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस और वो हो गया 2C, क्योंकि इट C प्लस C पैरेलल में 2C हो गया मल्टीप्लाइड बाय नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल इज कॉमन पोटेंशियल एंड इट इज V/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट इज 2C मल्टीप्लाइड बाय इट इज V स्क्वायर बाय 4। तो 2 2s are 4, तो यू आर लेफ्ट विद हाफ ऑफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बट हाफ ऑफ CV स्क्वायर अगर आप देखेंगे, हाफ ऑफ CV स्क्वायर अगर आप देखेंगे वो इनिशियल एनर्जी है, तो इससे पता चला कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी का आधा है। फाइनल एनर्जी हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी, सो डिक्रीजेस बाय a factor of 2, decreases by a factor of 2। the total electrostatic energy of the resulting system जो फाइनल एनर्जी है वो डिक्रीज हुआ इनिशियल से बाय 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A and B are two condensers of capacity 2 microfarad and 4 microfarad, they are charged। तो हमारे पास दो कंडेंसर्स है, दो कैपेसिटर्स है और एक का कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफैरड, इसका नाम दिया है A, और दूसरे का कैपेसिटेंस दिया 4 माइक्रोफैरड और इसका नाम जो है वो दिया गया है B। नाउ दे आर चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 and 6 वोल्ट। तो इसको आपने 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया और इसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ। इफ दे आर नाउ कनेक्टेड पॉजिटिव विद पॉजिटिव, अगर आपने इसके पॉजिटिव प्लेट को इसके पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ दिया, द चार्ज that flows through the connecting wire is, हमें बोलना है इस कनेक्टिंग वायर में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज निकालेंगे। इनिशियल चार्ज हो गया C इंटू V, C इसकी कैपेसिटेंस है दैट इज 2 और V जो है दैट इज 12, तो इट इज 24 माइक्रोकूलम इज द इनिशियल चार्ज ऑन द सर्किट। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये इनिशियल चार्ज जो है कंडेंसर A पे आ गया। अब हम इस पे फाइनल चार्ज, बट चूंकि हमने इनको कनेक्ट कर दिया है तो हम कॉमन निकालेंगे
दैट कॉमन पोटेंशियल जो है V कॉमन दैट इज C1V1 दैट इज 2 into 12 plus C2V2 क्योंकि they are now connected they will reach to a common potential C2V2 it is 4 into 6 divided by C1 plus C2 it is 2 plus 4 it is 2 plus 4 तो ये हुआ 24 plus 6 4 are 24 divided by 6 it is 48 divided by 6 and 6 8 that 48 तो ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। जैसे आपके पास कॉमन पोटेंशियल आया तो मैं इसी कैपेसिटर 1 पे फाइनल जो है फाइनल चार्ज कैलकुलेट करूंगा ना। फाइनल चार्ज विल बी C इंटू V कॉमन क्योंकि अब कॉमन पोटेंशियल पे C उसका अपना जो है दैट्स 2 और V कॉमन जो है दैट्स 8 8 2 16 माइक्रोकूलम। तो इनिशियली जो चार्ज था दैट इज 24 माइक्रोकूलम और फाइनली जो उस पे चार्ज है आफ्टर कनेक्टिंग विद अनदर कैपेसिटर और कंडेंसर दैट इज 16 माइक्रोकूलम। तो डेफिनेटली चार्ज कम हुआ है। अगर चार्ज कम हुआ है कैपेसिटर A पे तो वो कहां चला गया, वो B पे चला गया। तो चार्ज जो है वो A से B चला गया है तो A से B ही ऑप्शन होना चाहिए। B to A गलत है, B to A गलत है, A से B ही। और कितना सर, दैट विल बी द डिफरेंस Q इनिशियल माइनस Q फाइनल। Q इनिशियल जो आपका है दैट इज 24 माइनस Q इनिशियल जो है Q फाइनल इज 16 तो 8 माइक्रोकूलम फ्लो हुआ फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B कैपेसिटर 8 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो फ्लो हुआ। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the electrostatic force between the metallic plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and areas। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप दो मेटलिक प्लेट्स एक parallel plate कैपेसिटर के लेते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेट फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से इस पे मैं फोर्स निकालूंगा तो मान लो इस पे चार्ज Q है तो फोर्स होगा बराबर इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जो है आपका फील्ड। मगर फील्ड हम जो है वो हम एक ही प्लेट का लेते हैं एंड दैट फील्ड इज 2 हियर, ठीक है, क्योंकि एक प्लेट का फील्ड और दूसरे प्लेट का चार्ज, तो इस प्लेट का चार्ज और इसके फील्ड में वो है तो इसका फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स हो गया F इज इक्वल Q मल्टीप्लाइड बाय इसका फील्ड दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अब ऑप्शंस में हमें डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में फोर्स और क्या डिपेंडेंसी निकालना है तो मैं लिखूंगा Q, सिग्मा के बदले होगा Q बाय A तो इट्स 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन प्लेट बिकॉज ऑफ अनदर। और यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपको फोर्स का ये निकालना हो तो इसमें तरीका ये होता है बिटवीन द टू प्लेट्स कि एक प्लेट पे चार्ज लेते हैं और दूसरे का फील्ड लेते हैं तो Q इसे निकालते हैं, एक का चार्ज दूसरे का फील्ड, एक प्लेट का फील्ड हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और रिजल्ट मॉडिफाई हो गया ऐसा आ गया और ये पता चला कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the capacitance of a parallel plate capacitor with air as dielectric medium that medium is 6 microfarad. With the introduction of a dielectric medium the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें पता है दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है C by C नॉट। अगर आप देखोगे मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कैपेसिटी है दैट्स 30 माइक्रोफैरड और जब ईयर था तो 6 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड तो निकल गया, इट इज 6 5 30 तो K आ गया बट K इज साइमल्टेनियसली एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन चाहिए एंड इट्स K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब हम एप्सिलॉन निकालेंगे एंड इट इज K टाइम्स दैट इज 5। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है इट इज 8.85 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 10। तो उसके बाद इट्स 10 रेज़्ड पावर माइनस 10 तो ये हो गया एप्सिलॉन इज इक्वल 5 5 25 5 8 40 इट इज 2 देन इट इज 5 40 इट इज 44 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 10 और यहाँ पे दो जो है के बाद आपका डेसिमल है। अब यहाँ आंसर में जो है पॉइंट तो यहाँ आप लीजिए इट इज 0.44 तो जब आप यहाँ 2 चले गए तो वहाँ जो है आपका 10 रेज़्ड पावर जो है 10 रेज़्ड पावर तो एप्सिलॉन में -12 था, सॉरी एप्सिलॉन में -12 था, -12 है तो ये जो है -10 पे रिड्यूस होकर आएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the equivalent capacitance of the combination shown in the figure। हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम पॉइंट पोटेंशियल कहते हैं। पॉइंट पोटेंशियल में ये स्ट्रैटेजी रहती है कि हम मानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल V1 पे है तो ये भी V1 पे आ गया और उसकी वजह से ये भी V1 पे आ गया क्योंकि करंट जो है वायर जो है वो शॉर्ट कर देगी। मान लो ये एंड जो है V2 पे है तो उसकी वजह से वायर इसको यहाँ शॉर्ट कर देगी V2, ये भी V2 हो गया, ये भी V2 हो गया और ये भी V2 हो गया। क्योंकि ये दो एंड्स बराबर पोटेंशियल पे तो इसमें तो बिल्कुल कोई कैपेसिटेंस होगा नहीं। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो V1 V2 में दो कैपेसिटर है, ये V1 है ये V2 है और उसमें 2 कैपेसिटर है और दोनों जो है वो पैरेलल में है तो दोनों की कैपेसिटेंस CC है तो C इक्विवेलेंट हो गया बराबर 2C क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड होती है तो 2C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज
On joining two spherical conductors of radii R1 and R2 by a conducting wire, the energy of the system. देख लीजिए, जब भी आप दो आइडेंटिकल स्फीयर्स दो स्फीयर्स जो है जिनके रेडियस दिए हैं R1 और R2, आप इनको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो डेफिनेटली हमेशा ऐसा होगा जब आप वायर से जोड़ दोगे, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड देयरफॉर देयर विल बी डेफिनेटली लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, बट एक्सेप्ट इन वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज अगर इसका पोटेंशियल इसके बराबर हुआ तो पोटेंशियल होना चाहिए स्फेरिकल कंडक्टर का, हमें पता है इट इज KQ by R, but here the charge is Q1 and the charge here is Q2. It is KQ1 by R1 should be equal to KQ2 by R2. अगर ये कंडीशन मैट होती है, अगर इनके पोटेंशियल्स बराबर हुए तो उस कंडीशन में कनेक्टिंग वायर जोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं और एनर्जी का लॉस होगा नहीं, तो K के कट जाएगा तो चार्ज, therefore the conclusion is that whenever two spheres are connected by a connecting wire there will be always loss of energy except in one condition, if the potentials are equal, and therefore Q1 by R1 is equal to Q2 by R2. So answer should be for this question, answer should be that will always decrease except in condition Q1 by R1 is equal to Q2 by R2. सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के बाकी हर कंडीशन में लॉस ऑफ एनर्जी डेफिनेटली होगा। उसके बाद सर्किट हैज अ सेक्शन AB शोन द फिगर विद E इक्वल टू 10 वोल्ट, तो ये जो है ये दिया है आपको 10 वोल्ट, उसके बाद आपको C1 दिया है 1 माइक्रोफैरड, C1 दिया है आपको 1 माइक्रोफैरड, C2 दिया है आपको 2 माइक्रोफैरड, और हमें पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस जो है A और B में वो 5 वोल्ट का दिया है, द पोटेंशियल द वोल्टेज अक्रॉस C1, तो हमें इसमें जो है C1 में वोल्टेज निकालना है। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका ये है करने का, हम मानते हैं कि हमने यहाँ से एक चार्ज ट्रांसफर कर दिया Q, जैसे चार्ज ट्रांसफर कर दिया Q तो पहला प्लेट कैपेसिटर का पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये प्लेट भी पहला पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB जो आपको पहले ही प्रोवाइडेड है, वो 5 वोल्ट जो है वो दिया गया है, फिर हम यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो पहला चार्ज जो आपको दिखे वो पॉजिटिव है, इसलिए मेरा साइन कन्वेंशन चलता है पॉजिटिव, और फिर क्योंकि पोटेंशियल लिख रहे हैं तो पोटेंशियल मैंने चार्ज माना Q, तो इट इज Q by C मींस Q by 1, क्योंकि पोटेंशियल ऑन दिस इज हियर इज Q by C, एंड देन ये नेगेटिव यहाँ पे दिखा तो यहाँ -10 आ जाएगा सीधे पोटेंशियल, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस Q बाय, क्योंकि चार्ज आपने Q ही ट्रांसफर किया बाय 2, तो VA माइनस VB आपको 5 दिया है, ये हुआ इट इज 3 by 2Q देन -10, ये हुआ 15 is equal to 3 by 2Q, 3 5 are 15, 5 2 are 10, it is 10 जो है आपका Q है 10 माइक्रोकूलम। तो जैसे आपका 10 माइक्रोकूलम चार्ज आया, अब आपको चार्ज जैसे मिला, अब हम इस पे जो है इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल कोई भी हो दैट्स Q by C, एंड Q आपने निकाला दैट्स 10 माइक्रोकूलम, एंड C जो है इसका दैट्स 1 माइक्रोफैरड, तो ये जो है माइक्रो कट के तो 10 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर, दैट इज द पोटेंशियल ऑन दिस कैपेसिटर इज 10 वोल्ट। इसी तरह अगर आप इस पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो अगेन इट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 माइक्रोकूलम, इस पे भी चार्ज होगा, बट हमसे C1 पूछा है तो हमने C1 कैलकुलेट किया। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट शोन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट पोटेंशियल, ये मान लो V1, ये भी V1, और उसकी वजह से ये भी हो गया V1 और ये भी हो गया V1। मैं इस जंक्शन का V2 मानता हूं, तो ये V2 पोटेंशियल पे ये V2 पोटेंशियल, इसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक कहते हैं, दिस इज V3 और ये भी V3। इसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो हम पॉइंट्स बनाएंगे, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2 और ये हो गया आपका V3, क्योंकि आपके पास 3 ही पोटेंशियल है। और अब आप V1 V2 में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, फिर V1 V2 में और एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस भी 1 माइक्रोफैरड है। उसके बाद आपका V2 V3 में, पहले V1 V3 में या V2 V3 में आपका एक कैपेसिटर है, V2 V3 में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, फिर V1 V3 में और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस आपको प्रोवाइडेड है 2 माइक्रोफैरड। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, ये दो पैरेलल में है तो ये सीधे ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1, तो ये हो गया 2/3। अब ये 2/3 उसके साथ पैरेलल में है तो C नेट जो आ जाएगा इट इज 2/3 plus 2, तो इट इज 8/3 माइक्रोफैरड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉइंट पोटेंशियल से ये क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3 कैपेसिटर्स 2, 3 and 5 माइक्रोफैरड कैन विथस्टैंड वोल्टेज ऑफ दिस एंड रेस्पेक्टिवली देयर सीरीज कॉम्बिनेशन कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। तो आपका जो सर्किट है वो ऐसा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं
और आपको बोला जा रहा है कि कितना आप पोटेंशियल दे सकते हो कि तीनों जो है वो ब्रेक डाउन से बच जाए। तो इस पे जो है इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड, और उसके बाद इसका जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है। हमें पूछा जा रहा है कि ये पोटेंशियल आप कितना दे सकते हो कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो ब्रेक डाउन में ना आ जाए। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का वो ये है कि आप हर एक का ब्रेक डाउन चार्ज निकालिए। तो इसका जो ब्रेक डाउन चार्ज हो गया दैट इज CV, इट इज 6 माइक्रो कूलम। इसका जो ब्रेक डाउन चार्ज हो गया अगेन CV, इट इज 6 माइक्रो कूलम, 3 2 6। बट अगर आप इसका देखेंगे, इसका अगर आप ब्रेक डाउन चार्ज देखेंगे तो कितना चार्ज दोगे कि ब्रेक डाउन हो जाए, तो C × V इट्स 5 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द सर्किट। मतलब आप सर्किट में 5 माइक्रो कूलम से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने 5 माइक्रो कूलम से ज्यादा चार्ज दिया तो ये वाला कैपेसिटर जो है वो ब्रेक डाउन में आ जाएगा। तो हमें चार्ज मिला। अब हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल में है तो C इफेक्टिव जो है 1/C वो आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो ये 1/C इज इक्वल, ये हुआ 3 एंड दिस इज 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/5, 25 और 6 ये हुआ 31 डिवाइडेड बाई 30, और C हुआ बराबर 30 डिवाइडेड बाई 31। तो जैसे हमें ये सारी चीज़ें मिली तो हम सबको पता है Q इज इक्वल CV। Q जो है वो 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता। C हमने निकाला, इट इज़ 30 डिवाइड बाई 31 मल्टीप्लाइड बाई V। हमें यहाँ V पता चलेगा, तो इट इज़ 5 6 30, तो V इज इक्वल 31/6 वोल्ट से ज़्यादा अगर आपने पोटेंशियल दिया तो आपका ये वाला जो है कैपेसिटर ब्रेक डाउन में आ जाएगा। सो ऑप्शन शुड बी 31/6 वोल्ट। 31/6 वोल्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए ये तो बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉइंट पोटेंशियल से अगर आप देखोगे ये V1 हो गया, तो ये भी V1 हो गया, तो ये भी V1 हो गया। अगर ये पॉइंट V2 पोटेंशियल पे तो ये V2 पे आ गया, तो ये V2 पे आ गया। तो ये V1 V2 में एक कैपेसिटर हो गया, V1 V2 में और एक कैपेसिटर, V1 V2 में और एक कैपेसिटर। जब 3 कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो C इफेक्टिव होता है बराबर 3 टाइम्स C। तो 3 टाइम्स C हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। या दूसरा तरीका इसमें यह है कि इसमें शॉर्टकट है दैट इट्स n-1, दिस द फॉर्मूला, then epsilon naught A/D। n is the number of plates, और यहाँ 4 प्लेट्स होने की वजह से it's 4-1 epsilon naught A/D। So answer of this question should be 3 epsilon naught A/D। चाहे आप इस शॉर्टकट से इसको सॉल्व करिए where n is number of plates, या आप लॉजिक यूज करिए, पॉइंट पोटेंशियल तरीका भी सॉल्व करने का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया एनर्जी डेंसिटी, और हमें पता है दैट्स हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E²। बट E² में कोई है नहीं, तो बट वी नो दैट E होता है बराबर V/D, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इट इज V²/D², शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट V²/D² इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपने 3 masses को एक्स एक्सिस पर प्लेस किया, 3 100 एट ऑरिजिन, 300 ऑरिजिन पे है। उसके बाद आपका 500 जो है 500 ग्राम का मास जो है वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और लास्ट में 400 ग्राम का एक मास है। 400 ग्राम का मास जो है वो 70 मीटर डिस्टेंस पे है। हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ऑरिजिन। सेंटर ऑफ मास का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। आप देख लीजिए, आप m1x1 हो गया 0 क्योंकि उसका डिस्टेंस है ही नहीं, प्लस m2 आप देख लीजिए इट इज 500 मल्टीप्लाइड बाय इट इज 40, इट इज प्रोवाइडेड, देन प्लस m3 जो है आपका दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 हुआ 9 3 12, तो ये 1200 हो गया। तो 1200 में 2 0, ये 2 0 और ये 2 0 पहले ही फुर्सत में उड़ा दो। ये हुआ 200, ये हुआ आपका जो है 5 4 20, और वो हुआ 280 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका जो ये है ये रिड्यूस होके आ जाएगा, आपका XCOM जो है ये जो है आपका आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 12। 12 4 80, सो 40 सेंटीमीटर शुड बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ऑरिजिन। 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए ये आपका जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने 2 डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं सच दैट K2 इज ग्रेटर देन K1। तो ये है आपका
K1, ये है आपका K2, और ये दिया गया है दैट K1 जो है वो लेस देन K2 है। तो आपको बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो है ग्राफ कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर में मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगा, उसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक उसमें आ जाएगा तो फील्ड डिप हो जाएगा, फिर एयर आ जाएगा तो फिर से रेस्टोर करेगा और डाइलेक्ट्रिक की वजह से डिप। अब जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक उतना ज्यादा डिप। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो देख लीजिए एयर में जो है कुछ फील्ड में मान के चलता हूं तो ये है फील्ड एयर में, उसके बाद जैसे डाइलेक्ट्रिक आया वो डिप हुआ, थोड़ा कम हुआ तो बिल्कुल डेफिनेटली कम हुआ, उसके बाद फिर से एयर आया तो अपना रेस्टोर किया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्यों K2 ज्यादा है तो इससे ज्यादा डिप आना चाहिए जो K1 में आया था। तो K1 में जो डिप आया था K2 में उससे ज्यादा डिप नीचे आया तो नीचे चला गया, और फिर से एयर आ गया तो फिर से अपनी पोजीशन पे चला गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट चॉइस। ये हो नहीं सकता क्योंकि बराबर है। इसमें ये दिखाया है कि इसमें फील्ड ऊपर चला गया, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड ऊपर नहीं जा सकता, कम हो जाता है, इसमें भी यही दिखाया। इट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसेप्चुअल बट इंपॉर्टेंट। Two persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 3 meter and weighs 100 kilogram. The 55 kg man walks up to 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. देख लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल जो है, जिसको हम तगड़ा कहते हैं, होना चाहिए। आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए कि क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में जीरो है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वी कॉल दिस एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें बोट आदमी जो है आइसोलेटेड है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाता है। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। सेंटर ऑफ मास क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट में है, विल नॉट मूव। इसमें आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मूव नहीं करेगा। इनिशियली भी रेस्ट, फाइनली भी रेस्ट, आंसर इज जीरो। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द रॉड ऑफ लेंथ L। तो अगर आपके पास एक रॉड ऑफ लेंथ L है तो हमें निकालना क्या है इसमें। तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर मास डेंसिटी वेरीज विद लेंथ एज लैम्डा दिया है आपको, दैट्स मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोवाइडेड, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन केसेस में जिनमें ऐसा सिस्टम हो, आपका नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम इसमें इंटीग्रेशन लेते हैं और एक स्ट्रिप लेके हम ये बिलीव करते हैं कि इसकी लेंथ dx है और इसका मास dm है। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो dm हो गया बराबर मास पर यूनिट लेंथ, वो है लैम्डा, दैट इज kx मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ दिस सेक्शन। और फिर अगर आप XCOM निकालना चाहते हैं, दैट XCOM इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो XCOM जो सेंटर ऑफ मास है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm के बदले में लिख सकता हूं इट इज kx dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm के बदले फिर से मैं लिख सकता हूं इट इज kx dx, और टोटल लेंथ इज l, तो 0 to l हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो XCOM जो है आपका आएगा, इट इज k बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर हो गया x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to l डिवाइडेड बाई k बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to l। के पहली फुर्सत में उड़ा दो, इट इज l क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई इट्स l स्क्वायर बाई 2। तो XCOM जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा l क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई l स्क्वायर। तो l स्क्वायर उड़ जाएगा, इट्स 2, इट इज XCOM इज 2 बाई 3 l शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, और आपने फॉर्मूला पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए इन द अरेंजमेंट शोन द फिगर ma जो है आपका, इसका मास जो है वो दिया गया है 2 kg, इसका मास 2 kg दिया है। mb जो है आपका, उसका मास दिया है 1 kg। हमसे पूछा गया स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें निकालना है ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। तो पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास, मतलब ये नीचे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग। और आपने पढ़ा होगा डायनेमिक्स में, इट इज m1 minus m2 divided by m1 plus m2 multiplied by g। m1 जो है that is 2 minus m1 जो है that is 1 divided by 2 plus 1 multiplied by g, it is g by 3 meter by second square। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक तो आ गया हमारे पास, बट हमसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, और आपने पढ़ा होगा इट्स m1a1 plus it is m2a2 divided by it is m1 plus m2। तो m1 जो है आपका that is
2 kg मास, इट इज 2। और फिर आपका A1 जो है नो डाउट वो g/3 है, और वो जो है आपका दैट इज 2, बट g/3 जो है वो डाउनवर्ड्स है, वो डाउनवर्ड्स है, तो मैंने माइनस कर दिया। देन प्लस M2 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मास उसका जो है वो 1 है, 1 है, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं लेता हूं वो g/3, क्योंकि यहां वेक्टर नोटेशन है, तो A1 इज अ वेक्टर एंड A2 इज अ वेक्टर। क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने माइनस लिखा यहां पे, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो प्लस लिख दिया, एंड मास जो है 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए -2 में से 1 g, तो ये बनेगा -g/3 LCM, और 3 3 9, तो -g/9 इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट -g/9 ऐसा कुछ नहीं है, माइनस शोज दैट इट मूव्स डाउनवर्ड्स। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन g/9 है, तो g/9 डाउनवर्ड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज two particles of masses 1 and 3 kg are moving towards each other due to mutual interaction। जैसे म्यूचुअल इंट्रैक्शन जैसी चीज आप COM में सुनते हैं ना, तो मींस फोर्सेस आर इंटरनल, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 2 मीटर बाय सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दिया है, व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज दिस, देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इनिशियली भी था 0.5 मीटर पर सेकंड, फाइनली भी रहेगा 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो आंसर शुड रिमेन सेम, इट इज 0.5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3 interacting particles of masses 200, 100, 200 and 400 each have a velocity of 20 meter per second of magnitude along positive extraction of x, y and z due to the force of interaction। तो ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फिर से आ गया, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम लिख सकते हैं इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो द थर्ड पार्टिकल जो है, थर्ड पार्टिकल तो स्टॉप हो गया मूविंग, एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल इज प्रोवाइडेड देन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो हम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के हिसाब से चलेंगे। इनिशियल मोमेंटम हो गया 100, मास वेलोसिटी हो गया 20, चूंकि वो एक्स एक्सिस में आई कैप। दूसरे पार्टिकल का मास आपका 200 है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज 20, वो जो है वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप प्लस तीसरे पार्टिकल का मास अगर आप देखेंगे वो है 400 मल्टीप्लाइड बाय 20, स्पीड वही है, और वो जो है के कैप। के कैप क्यों आप लिख रहे हैं, क्योंकि वो जेड डायरेक्शन है में आएगा। और फिर पहले पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है, मास m है फाइनली, और वेलोसिटी मैं मानता हूं v। दूसरे पार्टिकल का मास जो है आपका दैट इज 200, और उसकी वेलोसिटी प्रोवाइडेड है दैट इज 10 j कैप प्लस आपका जो है 5 k कैप। थर्ड पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया है, तो प्लस हो गया 0। अब आप पहली फुर्सत में 00 00 00 00 00 और 00 यहां से उड़ा दीजिए। उसके बाद क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 20 i कैप प्लस ये हुआ 40 j कैप प्लस ये हुआ 80 k कैप, देन इज इक्वल टू ये हुआ vi वेक्टर जो हमें निकालना है, प्लस आपका जो है यहां पे देख लीजिए आप, इट इज 20 इट इज j कैप प्लस 10 k कैप। इसको यहां शिफ्ट करिए, हमें v1 मिल जाएगा, और v1 देख लीजिए 20 i, वहां से i कुछ है ही नहीं, तो 20 i कैप एज इट इज रहेगा, 20 i कैप प्लस अगर आप देखेंगे 40 j कैप, ये जब 20 यहां आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और बचेगा 20 j कैप, और प्लस यहां पे जो है 80 k कैप है, वो 10 k कैप है, यहां आएगा तो प्लस 70 k कैप शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपका 20 i कैप प्लस 20 j कैप प्लस 70 k कैप। वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपने इसमें जो कंसेप्ट यूज किया, दैट्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a 1 kg stationary bomb is exploded in the 3 parts having masses in the ratio. Particles having same masses move in perpendicular directions with velocities 30 meter per second. Then the velocity of bigger part will be, हमें bigger part का velocity निकालना है। तो ये explosion है, और explosion में आपको पता होना चाहिए, explosion में internal forces involved है, again law of conservation of momentum is valid। तो हम इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ये हो गया मास m, ये हो गया मास m, ये हो गया 3m, बिकॉज ऑफ द रेशो 1:1, तो ये इसलिए mm कर दे और ये 3 कर दिया। तो ये जो पार्टिकल है ये बोलते हैं 30 मीटर पर सेकंड से चला गया, तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया मोमेंटम, तो 30m, और ये भी चला गया 30 वेलोसिटी से मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो आपको बोल रहा है कि थर्ड पार्टिकल किस स्पीड से मूव करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दो पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 90, रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर। वन ऑफ द वेक्टर इज 30m, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर, और फिर ये होना चाहिए बराबर इस मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास जो है वो 3m है, तो 3m इंटू v डैश शुड बी इक्वल टू 30m
इंटू √2। देखिए mm निकल जाएगा, 3 10s are 30, so v dash should be 10√2 meter per second should be the right answer of this question. 10√2 meter per second should be the right answer of this question. Again based on law of conservation of momentum. Question number next is, a ball is dropped from a height 5 meter, the time after which the ball stops rebounding if the coefficient of restitution between ball and the ground is. तो ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और आपने पढ़ा होगा अपने क्लासरूम प्रोग्राम में, जो टाइम होगा वो होगा t0 एंड देन इट्स 1 + e डिवाइडेड बाय 1 - e। इस फॉर्मूला से ये जल्दी सॉल्व होगा और ये आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा। तो t हो गया t0 हो गया 2h/g की साइड से फॉल कर गया, देन इट इज 1 + e हो गया 1/2 डिवाइड बाय 1 - 1/2। तो फिर हम इसमें ड्रॉप करेंगे, t इज इक्वल √2h, 5 मीटर हाइट से गिरा है, g का वैल्यू 10 है, तो ये हो गया यहाँ पे 3/2 और ये हो गया बराबर 1/2। तो ये 10 और 10 कट के t इज इक्वल 2 चला जाएगा। 3 सेकंड शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 3 सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Two billiard balls undergo a head-on collision. Ball 1 is twice as heavy as second. Initially, ball 1 moves with a speed v towards ball second, which is at rest. Immediately after the collision, ball 1 travels at a speed of v/3 in the same direction. What type of collision has occurred? अगर हमें type of collision निकालना है तो हमें coefficient of restitution निकालना पड़ेगा। तो मैं इसमें यूज करूंगा initial that conservation of momentum. Its mass is 2m और velocity इसकी initially v है, प्लस ये तो रेस्ट पे है। फाइनली जो 2m है उसका स्पीड दिया गया collision के बाद वो चला गया v/3 से, तो ये मास जो है इसकी स्पीड में अंतर collision के बाद v डैश होगी। तो पहली फुर्सत में m और m उड़ा दो, ये हो गया 2v, देन ये यहां आ जाएगा -v/3 इज इक्वल टू v डैश। 3 2 6 -1, तो 3 2 तो ये पहले 2 है और ये 2/3v है, तो 3 2 6 -2 इज 4, इट इज 4/3v इज इक्वल टू v डैश। मतलब collision के बाद वाली जो है आफ्टर collision वाली कंडीशन ये है, ये 2m है, ये m है, ये m अब मूव करेगा 4/3v से और ये मूव कर रहा है v/3 से। हमें पता है दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया बराबर 4/3v माइनस v/3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो है सिर्फ ये बॉडी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है v उड़ जाएगा, इट इज 4 - 1, 3/3 इज इक्वल टू 1। जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो collision इज परफेक्टली इलास्टिक। तो collision जो है वो बिल्कुल इलास्टिक collision है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a mass of 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइडेड है कि जिसमें आपके पास एक जो है बॉब लाइक स्ट्रक्चर है और आपको यहां से बोला गया है कि एक मास जो है जो 10 ग्राम का है वो मूव कर रहा है विद 100 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसकी तरफ। फिर स्ट्राइक्स द बॉब ऑफ द पेंडुलम एंड स्टिक्स टू इट, तो इसके साथ चिपक गया। उसके बाद द मास ऑफ द बॉब इज आल्सो 10। तो जब इसका भी मास 10 है, इसका भी मास 10 है, बट ये इसके साथ 10 ग्राम ही है और इसके साथ स्टिक हुआ, तो एक परफेक्टली इनइलास्टिक collision हुआ। द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द सिस्टम कैन बी रेज्ड इज, तो ये जब इसके साथ चिपक गया तो आपको बोलना है कि किस हाइट तक ये मास अब जो है वो चला जाएगा। दैट्स आवर क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट जहां तक ये चला गया। तो पहली फुर्सत में आप ये करिए, आप ये परफेक्टली इनइलास्टिक collision है, हम निकालेंगे जो ये इसके साथ चिपक के फिर मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए हम इनिशियल जो है इसका आप मास जो है तो वो 10 है, वेलोसिटी इज 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्लस इसका तो 0 था इज इक्वल, अब ये दोनों मिलके चल रहे तो 10 + 10 इज 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज v। तो पहली फुर्सत में 0 और 0 उड़ा दीजिए और उसके बाद v हो गया बराबर 100 डिवाइड बाय 2, इट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करेगा। जब ये 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं लिखूंगा हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m दैट इज 20 इंटू v स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी हो गया m दैट इज 20, g का वैल्यू आप 1000 लेंगे। क्यों लेंगे 1000? क्योंकि g आपका मीटर पर सेकंड में और आप सेंटीमीटर ग्राम में ले रहे हैं, दैट इज वाई मल्टीप्लाइड बाय h निकालना है। तो आप देख लीजिए ये जो 0 और 0 जो है निकल जाएगा, यहाँ से 2 और 2 निकल जाएगा, तो h आपका जो है वो हो जाएगा 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000, 2 इंटू यहाँ जो है आपका 1000, तो यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल हो गया 25 बाई 2 हो गया 12.5 डिवाइडेड बाय हो गया 10, क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएंगे 0, तो h बचेगा 1.25 सेंटीमीटर शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो किस हाइट तक ये जाएगा? दैट शुड बी 1.25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एज इट बाउंसेस ऑफ द फ्लोर इट्स स्पीड इज 80 सेंटीमीटर। तो आपने एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया और जो स्पीड थी वो u है, और जब ये वापस रिबाउंड करती है तो इसकी स्पीड 80% रहती है, मतलब 0.8 ऑफ u से ये ऊपर चला जाता है। तो हमें बोलना है किस हाइट तक जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, पहले इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे, दैट्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डेफिनेटली 0.8 u है, क्योंकि फ्लोर तो रेस्ट पे है और अप्रोच जो है वो u है। u और u पहली फुर्सत में उड़ा दो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आया 0.8। तो किस हाइट तक ये रिबाउंड करेगा, मान लीजिए वो h1 है और वो होता है e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। अगर ये जो है और एक इक्वेशन लेता तो हम लिखते हैं e रेज़ पावर 4, और एक इक्वेशन लेता तो अकॉर्डिंगली हम पावर बढ़ाते, बट यहां पहला इक्वेशन है तो h1 इज इक्वल e स्क्वायर हो गया 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। तो आंसर शुड बी 0.64 h इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.64 h इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट is a projectile is fired with velocity v naught at an angle of 60 degree with horizontal. At top of its trajectory it explodes into 3 fragments of equal masses. तो 3 हिस्सों में बट गया। First fragment retraces the path, पहला फ्रेगमेंट वापस आया। Second moves with the vertical velocity of this. The speed of the third fragment is very important question। तो इसमें आपने क्या किया, आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया at an angle of 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री पे इसको जो है फायर किया। तो जब आप 60 डिग्री पे इसको फायर कर रहे हैं तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी v नॉट। जब इसकी वेलोसिटी v नॉट थी तो टॉप पोजीशन पे हम सबको पता है इस मास का, जिसका मास इसने, चूंकि इसने कहा है कि इसमें 3 फ्रेगमेंट्स है, तो मैं मानता हूं जो मास था उसका मास जो टोटल था दैट इज 3m, और उसकी वेलोसिटी होगी बराबर दैट विल बी v नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री। v नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री दैट इज v नॉट बाई 2। फिर इसमें 3 फ्रेगमेंट्स हुए, तो 3 फ्रेगमेंट्स में इक्वल 3 पीसेस हुए। तो एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये है। हमसे पूछा गया है कि एक पीस वापस आ गया, एक पीस वापस आ गया, दूसरा ऊपर चला गया, उसकी वेलोसिटी चली गई 3v नॉट बाई 2। तो इस पार्ट की वेलोसिटी हमें जो है कैलकुलेट करनी है। तो अगेन क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल फोर्सेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड, तो हम लेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो गया मास दैट इज 3m, और जो वेलोसिटी है उसकी दैट इज v नॉट बाई 2 i कैप, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद एक मास जो है m है, उसकी वेलोसिटी रिट्रेस कर दिया पाथ, तो रिट्रेस हो गया v नॉट बाई 2 से वापस आया, तो इट इज i कैप डेफिनेटली बट विद अ नेगेटिव साइन। उसके बाद और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, बट उसकी वेलोसिटी दे दी गई है दैट इज 3v नॉट बाई 2, और उसका जो है j कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ। तीसरा पार्टिकल m है और उसी का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप पहली फुर्सत में यहाँ m और m यहाँ उड़ा दीजिए। उसके बाद जो है देखिए 3/2 v नॉट, और ये जब यहां आ जाएगा तो 4v नॉट और 2 कट के तो ये बनेगा 2v नॉट i कैप, और फिर 2v नॉट i कैप आया और वो यहां आ जाएगा -3/2 v नॉट j कैप, और हमें मिल जाएगा v। तो ये वेक्टर मिला, हमें इसका मॉड चाहिए, तो मॉड ऑफ दिस वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज रूट ऑफ देख लीजिए, इस पे रूट आ जाएगा, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, पहले में v नॉट बाहर निकालता हूं, इस 2 पे स्क्वायर आ गया तो ये बना 4 प्लस इस पे स्क्वायर आया तो ये बना 9/4, 4 4 जा 16 और 9 हो गया 25 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया बराबर v नॉट, और 25 का रूट हो गया 5, 4 का रूट हो गया 2, 5/2 v नॉट शुड बी द आंसर of this question. 5/2 v naught is the right answer for this question. Question number next is a bullet of mass m and velocity v passes through a pendulum bob of mass m। तो फिर से एक पेंडुलम बॉब बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास एक पेंडुलम बॉब है, उसका मास m है, यहाँ से एक बुलेट आई जिसका मास m है, स्मॉल m है, तो ये मूव कर रही है स्पीड v से और पास कर रही है इससे, एंड इमर्जेस विद स्पीड v, और बुलेट जो है यहाँ से बाहर आ गई और बुलेट का मास m ही और स्पीड जो है उसकी v/2 हो गई है आफ्टर इमर्जिंग आउट। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट द पेंडुलम बॉब विल स्विंग थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। आपको पता होना चाहिए कंप्लीट साइकिल स्विंगिंग के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए दैट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी रूट ऑफ 5gl। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होता है। तो फिलहाल मैं यहां पे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करूंगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट इट्स मास इनटू वेलोसिटी प्लस, ये तो बॉब जो है वो रेस्ट पे था, इज इक्वल, फिर बॉब का वेलोसिटी मैं मानता हूं v डैश आ गया, देन प्लस ये जो बुलेट है इट इज m इंटू v/2। तो फिर मुझे आप बोलिए यहाँ पे आपका v डैश हमें बाहर आना चाहिए यहाँ पे,
तो इट्स एम वी माइनस एम वी बाई टू इज इक्वल टू एम वी डैश। तो ये हो गया एम वी बाई टू इज इक्वल टू एम वी डैश। तो वी डैश हमने निकाल दिया और वो बराबर है एम वी बाई टू एम। जैसे मुझे वी डैश पता चला, बट वी डैश का वैल्यू जो है वो इस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस फॉर दिस टू कंप्लीट अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ शुड बी रूट ऑफ 5gl। तो रूट ऑफ 5gl शुड बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई 2m। हमें v ही निकालना है, तो v जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2m ऊपर जाएगा, स्मॉल m नीचे आएगा, रूट ऑफ 5gl शुड बी द आंसर। 2m ऊपर नीचे स्मॉल m और रूट ऑफ 5gl should be the right option for this. Option number 4 is the right answer for this question. Question number next is, देखिए parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates if the distance between the plates is T and area of plates A, the energy stored in the capacitor is। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला होता है बराबर हाफ ऑफ दैट CV स्क्वायर, या आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एनर्जी डेंसिटी आप बात करें पहले तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, बट एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो मैं लिखूं एनर्जी बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया बराबर A इंटू D, क्योंकि द प्लेट्स एरिया जो है मैं मानता हूं A और डिस्टेंस उनके बीच में है D, इज इक्वल हो गया हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एनर्जी सिर्फ इस बार निकालनी है, तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम एनर्जी, नॉट एनर्जी डेंसिटी। आई हैव स्टार्टेड विद एनर्जी डेंसिटी एंड देन वॉल्यूम नीचे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, अ पार्टिकल ऑफ मास 3m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज r। At the highest point of its path it breaks into two pieces m and 2m. The smaller mass comes to rest and larger mass finally falls at a distance from the point of projection where x is equal। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट सम एंगल थीटा। जब आपने इसको एट सम एंगल थीटा फायर किया विद सम वेलोसिटी u, तो बोलता है टॉप पॉइंट पे तो वेलोसिटी हम सबको पता है वो u/2 ही होती है। तो इसके जो है दो फ्रेगमेंट्स हुए क्योंकि 3m मास था और 3m में क्या हुआ, आप 3m में इसके दो पीसेस हुए, एक छोटा m और दूसरा जो 2m वाला बड़ा मास जो है, 2m वाला मास जो है वो आगे चला गया। तो 2m मास वाला जो हिस्सा है वो अगर आगे चला गया, m छोटा मास रेस्ट पे आके सीधे नीचे गिरेगा। तो टॉप पोजीशन पे सीधे गिरने का मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो यहां से यहां तक रेंज जो है वो r/2 होना चाहिए और यहां से यहां तक भी रेंज जो है वो r/2 ही होगा। और फिर क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये 2m मास जो है वो कुछ आगे गिरेगा इस डिस्टेंस पे। तो हमें ये डिस्टेंस जो है मैं मानता हूं फिलहाल ये जो है ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो है वो x डैश है। मुझे x डैश नहीं निकालना है, मुझे x निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो सिस्टम इज आइसोलेटेड, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे गिरेगा, तो सेंटर ऑफ मास अपने पाथ को ही जो है ट्रैक करके यहां पे गिरेगा। अब ये सेंटर ऑफ मास है, ये मास यहां 2m है, ये मास यहां पे नीचे जो m गिरा है, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी m इंटू r/2 इज इक्वल टू इट इज 2m इंटू x डैश। तो यहां mm उड़ गया तो x डैश आपका r/4 आ गया, बट हमें x डैश नहीं चाहिए, हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए। तो अगर x डैश r/4 है तो प्लस हम r करेंगे, तो आपका नेट जो x डिस्टेंस है दैट इज r प्लस r/4। सो आंसर शुड बी 5/4r, क्योंकि ये r/4 है प्लस r, आंसर शुड बी 5/4r एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो है 3rd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से अगर आप देखेंगे हम पॉइंट पोटेंशियल से तो कर सकते हैं, बट जब भी 5 कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट आ जाए तो चेक करिए कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो। तो अगर आप देखेंगे 1/2 हो गया 1/2 और ये 2/6 जो है आपका फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ लीड कर रहा है। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लीड कर रहा है, या अगर आप देखेंगे इट्स 1 2 इट इज 2 एंड 6, तो इट इज 2 4 इट इज 1 4, तो फिर यहाँ 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। आप पॉइंट पोटेंशियल से इसको फिर से जोड़ दीजिए, जैसे अर्लियर मैंने दिखाया। तो ये V1 हो गया, ये भी V1 हो गया, ये आपका V1 हो गया। तो फिर उसके बाद अगर मैं मानता हूँ ये V2, दिस इज V2 हियर एंड दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज V3 एंड दिस इज V4 हियर। तो V4 हियर एंड अगेन दिस इज V4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन बाय ड्राइंग दैट सर्किट, तो इसका आंसर जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.25 माइक्रोफैराड बाय यूजिंग द पॉइंट पोटेंशियल। क्योंकि
जैसा क्वेश्चन हमने अर्लियर डिस्कस किया, फर्दर इसको एक्सप्लेन करना इस वक्त जो है हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज़ अ पोजीशन वेक्टर। हमें इस सिस्टम का जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला अर्लियर भी मैंने आपको पढ़ाया, दैट्स m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले? यहाँ m1 हो गया 1, x1 हो गया आपका दैट इज i कैप प्लस देन इट इज 2j कैप प्लस हो गया आपका बच्चों यहाँ k कैप, देन प्लस जो है आपका m2 अगर आप देखेंगे 3 और उसके बाद आपका माइनस 3i कैप, देन इट इज माइनस 2j कैप, देन इट इज प्लस k कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इट इज 3 प्लस 1 इज 4। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हुआ i कैप माइनस 3i कैप इज माइनस 2i कैप। उसके बाद नहीं पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, देन इट्स माइनस 9i कैप, देन माइनस 6j कैप, देन प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 1 हो गया माइनस 8i कैप, देन 6 माइनस 2 इट्स माइनस 4j कैप, देन प्लस इट इज 4k कैप डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करिए तो आंसर शुड बी माइनस 2i कैप, देन इट इज माइनस j कैप, देन इट इज प्लस k कैप शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस 2j कैप माइनस i कैप प्लस k कैप is the right answer. Question number next is the center of mass of the system from 5 kg particle is nearly। मान लो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास है और हमें 5 kg से उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो इस मास से अगर आपको डिस्टेंस निकालने तो अपोजिट मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस दैट इज 5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय नेट डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। आंसर सेंटीमीटर्स में है इसलिए मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो x हो जाएगा बराबर 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज नियरली इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। ये 66.66 आएगा, 66.66। तो हम निकाल सकते हैं x जो है 67 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस मास से निकालना होता तो आप लिखते अपोजिट मास 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ masses multiplied by 100. Question number next is an impulse gives a velocity of 14 meter per second to a heavier block in the direction of the lighter block, the velocity of the center of mass। तो सीधे velocity of center of mass निकालना है और आपको पता होना चाहिए that's m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। क्योंकि सेकंड पार्टिकल जो है आपका रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी है ही नहीं। m1 जो है उसका दैट्स 10, वेलोसिटी आपने दे दी 14 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो गया 14। तो 14 कट के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकंड should be the right answer of this question. Option number 3 is the right option for this. Question number next is देखिए फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। क्योंकि वो किसी पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है कि कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इतना दिया है कि नेट फोर्स बाय नेट मास। तो आप फोर्स कहीं पे भी यूज करिए तो आंसर इज नो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। आप कहीं पे भी फोर्स अप्लाई कीजिए, एक्सेलरेशन विल बी सेम इन एवरी केस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg is moving with the speed of 2 meter per second on a smooth surface. It strikes another mass of 1 kg, then they move together as a single body. The energy loss, तो आपको पता होना चाहिए इस केस में एनर्जी लॉस डायरेक्टली होता है बराबर हाफ ऑफ, ये परफेक्टली इनलास्टिक इक्वेशन है, हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 देन इट इज u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। परफेक्टली इनलास्टिक इक्वेशन में लॉस ऑफ एनर्जी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 1/2। एक पार्टिकल का मास है 0.5, दूसरे पार्टिकल का मास 1, फिर से इट इज 0.5 प्लस 1 देन मल्टीप्लाइड बाय एक ही पार्टिकल का वेलोसिटी है और वो दिया गया है, कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर ऊपर आ गया आपका ओनली 2 और फिर इट इज 0.5 डिवाइड बाय 1.5, इट इज 0.5 डिवाइड बाय 1.5। पॉइंट और पॉइंट उड़ गया, इट इज 10/15, 10/15 हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा इट इज 2/3 एंड 2/3 इज 0.67 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लॉस ऑफ एनर्जी 0.67 जूल। परफेक्टली इनलास्टिक इक्वेशन में आप डायरेक्टली उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, consider a system of two particles having masses m1 and m2. If the particles of mass m1 is pushed towards the center, तो इसको पुश किया आपने, इस पुश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस d, आपने इसको डिस्टेंस d से पुश किया टुवर्ड्स राइट। तो फिर पूछ रहा है बट बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिनल पोजीशन पर रखने के लिए डेफिनेटली इसको कुछ x यहाँ आना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा होगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे m1d, क्योंकि राइट की तरफ है माइनस, इसको आपने लेफ्ट की तरफ, तो ये m2x शुड बी इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू कीप
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड, तो m1d शुड बी इक्वल टू m2x, तो आपका जो x है वही कैलकुलेट करना है, इट्स m1 by m2 multiplied by d. So this is in order to keep center of mass at its original position. तो ऑप्शन नंबर थर्ड is the right answer. Question number next is a bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of masses 18 and 12 kg. तो इनिशियली भी रेस्ट पे फाइनली एक्सप्लोजन हुआ, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है, फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए आपका इन दो पीसेस का मोमेंटम जो यहाँ की तरफ जाएगा वो बराबर होना चाहिए. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पास 18 and 12 kg, द वेलोसिटी ऑफ 18, हाँ मैं लिखूंगा 18 into 6 is equal to 12 into 12 into v, मुझे नहीं पता वो कितना है. तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, एक 6 2 12, 2 9 8, तो उसका स्पीड जो है वो 9 मीटर पर सेकंड होगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मासेस, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हाफ ऑफ मास उसका 12 है और आपने स्पीड उसका निकाला 9. सो ये हुआ 12 6 तो कितना हुआ, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर है, तो इट इज 6 into 9 स्क्वायर. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल रिड्यूस टू 486 जूल शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर फ्रेगमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज two blocks of mass 3 kg and 6 kg respectively are placed on a smooth horizontal surface. They are connected by a light spring of force constant k equal this. Initially the spring is unstructured. The indicated velocities are imported to the blocks. The maximum extension of the solid. तो याद रखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करते हैं ना हम, तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक क्लूजन, क्योंकि उस वक्त ये दोनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त ये दोनों एक साथ मूव करेंगे. तो इट इज अ टाइप, what we can relate it to perfectly inelastic illusion, and therefore इसमें जो आपको निकालना है maximum extension, therefore loss in kinetic energy here क्योंकि is equal here gain in potential energy. spring mass system में ऐसा आप लिख सकते हैं gain in potential energy. now loss in kinetic energy के लिए फॉर्मूला आपके पास है, that is half of m1 m2 हो गया 3 into 6 डिवाइड बाय m1 plus m2 हो गया 9, और फिर u1 minus u2 का स्क्वायर प्रॉपर साइन के साथ, चूंकि लेफ्ट की तरफ है तो -1, फिर माइनस u1 minus u2, इट इज 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ k का वैल्यू दिया आपको 200 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. तो यहां पे आप देख लीजिए ये हुआ 2 3 6, 3 3 9 और 3 3 उड़ गया, तो ये हुआ 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 1/2 into 200 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. ये हुआ 18 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, और फिर जब ये 18/200 तो उसके बाद इसका जो है अगर आप इसका रूट लेंगे 18/200 तो आपका जो है वो रिड्यूस होके आ जाएगा 30 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन. फिर से मैं बोलूं, जब ये परफेक्टली ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन के वक्त ये परफेक्टली इलास्टिक क्लूजन की तरफ बिहेव करता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m1 m2 हो गया आपका 3 into 6 डिवाइड बाय m1 plus m2 हो गया 3 plus 6 हो गया 9, और फिर वेलोसिटी u1 minus u2 प्रॉपर साइन के साथ, चूंकि लेफ्ट है तो -1 यहाँ राइट है तो माइनस अपना, और फिर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ k आपको 200 दिया है एंड मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. फिर आपने क्या किया यहाँ कैंसिलेशन करके आपका जो x है दैट विल गेट रिड्यूस टू 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट इज इन द एडजॉइनिंग सर्किट द कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. तो इसमें क्या करना है आपको, फिर से वही पोटेंशियल टेक्निक कि मान लो यह पोटेंशियल V1 है, तो अगर ये V1 है बच्चों तो फिर यहाँ पे देख लीजिए V1 आ गया, तो यहाँ पे भी V1 आ गया, और फिर अगर मैं मानता हूँ V2 है तो ये सारा V2 है और ये सारा V2 है. आप देख लो V1 V2 में ये दो कैपेसिटर सीरीज में है तो C/2 हो गया. इसी तरह अगर आप देखोगे V1 V2 में ये तो सीरीज में है तो C/2 हो गया. V1 V2 में ये सीरीज में है तो दैट अगेन C/2 हो गया. V1 V2 में ये भी है तो C/2 हो गया. तो फिर ये पैरेलल में जुड़े हैं तो C इक्विवेलेंट हो गया बराबर C/2 प्लस C/2 प्लस C/2 प्लस C/2. इट इज 4 टाइम्स C/2, तो 4 टाइम्स हर एक की कैपेसिटी C है तो C/2 C/2 it is C/2, it is 4 times C/2, 4 times C/2, 2 2s are 4, answer should be 2C is the right answer for this question, and this completes your interaction for today. Thank you so much.